Yes. So next chapter what bete? Thermal properties of matter, and first topic is heat. Write down heat is the form of energy. It is the form of energy which produces in us the sensation of warmth, WARMTH, which produces in us the sensation of warmth. Yes, heat gained by a system or body is taken as positive. Heat gained, that this is a system or body. If this system is gaining heat, then it is taken as positive. Then it is taken as positive. And if the system is losing heat, then okay, then it is taken as negative. Heat loss. Heat loss is taken as negative and heat gain is taken as what? Positive. Heat gain is taken as positive. Yes, write down the units of heat. TGS unit of heat is calorie. TGS unit of heat is calorie, and in short notation CL calorie. Calorie. Okay. Calorie. Let us suppose here is a container and this container contains 1 gram of water. 1 gram of water, and let the temperature of this water in the container is how much? Let it is 40 degrees Celsius. It is what? How much it is? 40 degrees Celsius. And when I keep this on the water, and its temperature from 40 to become how much? 41 degrees Celsius, or how much increase there? That is equal to 1 degree Celsius. तो ये जो हीट इसको गई होगी 1 ग्राम वाटर को मैंने हीट दी ताकि इसका जो टेम्परेचर हो 1 डिग्री से राइज कर दिया जाए, तो उस हीट को बोलेंगे 1 कैलोरी है ना. ओके, राइट डाउन 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट. 1 calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water. 1 gram of water, why 1 degree Celsius? Why 1 degree Celsius? ओके, ब्रैकेट लोगे 40 डिग्री सेल्सियस टू 41 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी मर्जी है ना. 10 डिग्री टू 11 डिग्री, 9 डिग्री टू 10 डिग्री, बट वाई 1 डिग्री. ओके, तो जितनी हीट इस 1 ग्राम वाटर को मास होनी चाहिए 1 ग्राम, जितनी 1 ग्राम वाटर के लिए हीट देगी दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी. ओके, यस, SI unit of joule. This calorie heat is what? SI unit is joule. JOUL, joule. And short में उसको लिख देते हैं कैपिटल J. Okay, 1 calorie is equal to, remember, 1 calorie is equal to 4.18. 1 calorie is equal to 4.18 joule. 1 calorie is equal to 4.18 joule. Okay, next beta ji, write down joules mechanical equivalent of heat. Joules mechanical equivalent of heat. Joules mechanical equivalent of heat.
Joules equivalent of heat. Write down beta. Joule proved that the work done is directly proportional to the heat produced. Work done is directly proportional to the heat produced. Okay, or W is equal to capital J into H, where H is what? Heat, or J is equal to what? That is equal to work upon heat. J is equal to what? Work upon heat. If H is equal to 1, then J is equal to W. If H is equal to 1, then J is equal to what? W. Therefore, Joule's mechanical equivalent of heat may be defined as amount of work done to produce the amount of work done to produce 1 unit quantity of heat. 1 unit quantity of heat. The value of capital J, जो ऑलरेडी इसकी वैल्यू है, इसके राइट डाउन, वैल्यू ऑफ कैपिटल J is 4.18 जाउल। इस जाउल को ना आपने पूरा लिखना जाउल, अदरवाइज ये है या जे लिखेंगे तो आना गड़बड़ हो जाएगी। पर कैलोरी, जाउल पर कैलोरी। देखो जे की वैल्यू जाउल क्यों आया? वर्क का यूनिट क्या होता है? बोलो शाबाश, जाउल। ओके, और हीट का यूनिट क्या होता है? कैलोरी। जाउल पर कैलोरी, और इट इज इक्वल टू 4.18 into 10 raised to power 6 R per calorie, because 1 joule is equal to 10 raised to power 6 arg. Okay beta, written? Yes friends? Yes, sir. Yes, okay, sir. right on beta. Next is temperature. Temperature. What is temperature? Temperature को हम कैसे डिफाइन करते हैं? राइट ऑन temperature, capital T. Okay, temperature item. It is the degree of hotness or coldness of a body. It is the degree of hotness or coldness of a body. Yes, it is measured with the help of different types of thermometers. Okay, write down. Temperature scales. Yes, beta. First is Celsius scale. Celsius thermometer. Okay. Second one is Fahrenheit. Fahrenheit scale or thermometer.
Third one is Reaumur, R-E-A-U. Third one is Reaumur, R-E-A-U-M-E-R. Reaumur is denoted by capital R. Fahrenheit is denoted by capital F. And Celsius is denoted by capital C. Okay. Yes, listen. Celsius का जो lowest point होता है that is 0 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट का दैट इज 100 डिग्री ओके। सेल्सियस जो टेंपरेचर होता है थर्मोमीटर होता है उस पर लोएस्ट पॉइंट होता है 0 डिग्री और हाईएस्ट पॉइंट होता है 100 डिग्री। और जो फारेनहाइट होता है दिस इज फारेनहाइट। फारेनहाइट जो होता है इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है दैट इज 32 डिग्री ओके एंड अपर पॉइंट होता है दैट इज 212 डिग्री फारेनहाइट। डिग्री फारेनहाइट और लोअर पॉइंट होता है कितना बोलो शाबाश 32। और तीसरा जो होता है बेटा दिस इज कॉन्स्टेंट स्केल सेल्सियस स्केल फारेनहाइट स्केल एंड थर्ड वन होता है बेटा रियूमर। दिस इज रियूमर इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है दैट इज 0 ओके एंड हाईएस्ट इसका पॉइंट होता है दैट इज 80 डिग्री रियूमर ओके 0 डिग्री रियूमर एंड 80 डिग्री रियूमर ओके। तो इसमें बेटा रिलेशन आता है क्या रिलेशन क्या था पुरुषावास T माइनस इसका लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू F माइनस लोअर पॉइंट 32 डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट 212 माइनस लोअर पॉइंट ओके is equal to Reaumur R minus lower point is 0 and upper point is 80 minus 0. So therefore हमारे पास आ गया C upon 5 is equal to F minus 32 upon 9 क्योंकि 212 upon 32 180 रह जाएगा ओके और is equal to R upon 4। तो इस फॉर्मूले को यूज करके बेटे वी कैन कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टू फारेनहाइट और रियूमर और फारेनहाइट टू सेल्सियस और रियूमर टू सेल्सियस और फारेनहाइट। यस राइट डाउन वन न्यूमेरिकल कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट एंड रियूमर। कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट एंड रियूमर। अब देखो सी की वैल्यू आपको दी 100 आ जाएगी यहाँ पे 100/5। जब आपने इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो आर वाली टर्म और इसको भूल जाओ और जब आपने इसको रियूमर में करना तो एफ वाली टर्म को भूल जाओ एंड वाइस वर्सा। यस ओके आई थिंक 9th क्लास में किया हमने बेटा ना। यस सर ओके नेक्स्ट बेटे राइट डाउन absolute scale of temperature 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 yes today write down absolute scale of temperature जो होता है स्केल उसका जो मिनिमम होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट -273.16 डिग्री सेल्सियस ओके
ओके, और 0 केल्विन, और 0 केल्विन। और इसका जो अपर पॉइंट होता है बेटा कितना होता है बोलो, 373.16 डिग्री सेल्सियस, 373.16 और 15 भी लिखते हैं कुछ बुक्स में। ओके, तो ये जो टेम्परेचर है बेटा, लिसन, कोई भी गैस इस टेम्परेचर के ऊपर रह नहीं सकती, मींस गैस का प्रेशर भी और उस गैस का वॉल्यूम भी जीरो हो जाता है ना। ओके, तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 केल्विन को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज कॉल्ड एज -273 और 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। लिसन नाउ बेटे, अगर हम देखें किसी गैस के बीच में, here is the graph, here is temperature increasing towards x-axis, decreasing towards this. Here is that temperature is what, 100 degrees Celsius. Here that it is what, 200 degrees Celsius. And that here is what, -100 degrees Celsius. Here that -200 degrees Celsius. And that here it is equal to -273.16 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। ओके, और along y-axis I am taking the pressure or volume. वॉल्यूम के लिए भी होगा, प्रेशर के लिए भी कोई होगा। ओके, जस्ट वन मिनट, I am taking the pressure. I have 3 gases. 3 gases means of different kinds, maybe hydrogen, maybe carbon dioxide and something. Okay, तो बेटे जब गैस नंबर 1 का मैंने टेम्परेचर कम किया तो उसका प्रेशर भी कम हो रहा है। ओके, और भी टेम्परेचर कम किया, नेगेटिव में लेके गया, -100 किया तो और कम हो गए। लेकिन एक टाइम आएगा अगर उस गैस का टेम्परेचर में -273.16 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो उस गैस का प्रेशर कितना हो जा रहा है? 0 मींस गैस का प्रेशर 0 कब होता है? इसका मतलब गैस ही खत्म हो जाएगी। ओके, Yes, sir. गैस नंबर 1, सिमिलरली बेटा दिस इज फॉर गैस नंबर 2, एक कोई और गैस थी। ओके, दिस इज गैस नंबर 2। उसको ओके देखो, इसका प्रेशर बताओ, गिवन टेम्परेचर जो एक का ज्यादा है उसी टेम्परेचर दूसरी का कम है, मतलब दे हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट प्रेशर्स एट द सेम टेम्परेचर। और लेकिन जब इसका भी मैंने दूसरी गैस का टेम्परेचर कम किया देन आई केम टू नो दैट this gas also, because pressure of this gas also become 0 at 0 Kelvin. और अगर कोई और गैस भी लेने में थर्ड गैस, ओके, दिस इज गैस नंबर 3। ओके, इस गैस का देखो प्रेशर जो है 100 डिग्री के ऊपर कम है, दूसरी का 30 से ज्यादा है, तीसरी का और ज्यादा है। लेकिन इसका भी जब मैंने प्रेशर के सॉरी टेम्परेचर रिड्यूस किया तो एट -273 डिग्री 0.16 और 0 केल्विन के ऊपर तीनों गैसेस का, तीनों क्या हजारों गैसेस ले लो अब गैसेस का मिक्सचर ले लो के, लेकिन इस टेम्परेचर के आते आते हर एक गैस का प्रेशर और वॉल्यूम, एक ग्राफ आपने सेम ही बनाना होगा, उसमें आपने पी की जगह वी लिखना। ओके, तो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? Absolute zero is the temperature at which the volume or pressure of a gas becomes zero. Volume zero होने का मतलब बताओ क्या है? हाँ, मेरे पास ये फोन gas पड़ा है does not exist. बेटे, आवाज क्लियर आ रही है आपको? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप बताओ, मेरे पास आ पड़ा हुआ, क्या बोलते हैं इसको? जल्दी करो, आप आज अकेले आए हो, क्या बात है? बाकी बच्चे क्यों नहीं आए जो आते थे 4-5 दिन? अच्छा चलो बेटा देखो, ये मेरे पास चौक होल्डर है ना, मान लो इसके बीच में गैस है, खाली जगह है इसमें, देखो खाली जगह है इसके बीच में, तो उसमें गैस है। अब इसके बीच की जो गैस है उसका वॉल्यूम अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब वो गैस ही खत्म हो गई है। तो समझ गए? Yes sir. आप Yes, लोग sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. means
अगर इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अगर किसी जगह -273.16 डिग्री क्या होगा टेम्परेचर, बड़े ध्यान से देना, मैं कॉन्सेप्ट विश्वास कर रहा हूं। अगर इतना टेम्परेचर यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हो गया तो सारी की सारी गैस वहां की क्या हो जाएगी, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम जीरो होगा तो किनारे की गैस उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने आएगी, उसका भी टेम्परेचर -260 डिग्री होगा, उसका भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ यूनिवर्स में कहीं भी ऐसा टेम्परेचर अगर है या होता आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, तो अर्थ के ऊपर की सारी हवा वहां पे क्या हो जाती, खत्म हो जाती है। ओके, सो देयरफॉर दिस इट इज नॉट पॉसिबल टू गेन 0 केल्विन टेम्परेचर। ओके, क्रायोजेनिक इंजन होता है, क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट्स में लगता है, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर फिजिक्स। तो उसमें भी टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, -150 डिग्री तक होता है, इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर के ऊपर हम काम कर ही सकते। ओके, मीन इसके ऊपर अगर किसी बंदे को 2 सेकंड के लिए रख दिया जाए, तो आपने नाइट्रोजन में देखा ना क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। ये अगर हमारे पास मान लो लिक्विड नाइट्रोजन हो ना, और उस लिक्विड नाइट्रोजन में हम अगर 1 सेकंड के 10 हिस्से के लिए भी अगर हाथ बीच में डालें तो हड्डियां हड्डियां आएंगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। यस सर। होती है, ठीक है, हाइपोथर्मिया एकदम हो जाता है उससे। लेकिन उसका भी टेम्परेचर जो होता है मेजर कर लो, उसका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन उसका केमिकल इफेक्ट जो होता है। ओके, तो दिस टेम्परेचर इज एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट जीरो इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेन। ओके, यस सर। Yes, sir. triple point of water, triple point of water, triple point, triple point of water. Write down. It is the value of temperature and pressure. It is the value of temperature at which pressure नहीं लिखना बेटे, only temperature. It is the value of temperature at which water exists in all the states of water matter. Water exists in all the states of matter, that is solid state, number 2 liquid state, and gaseous state or vapor state. ओके, यस बेटे, अगर टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, एक टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने 0.01 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना तो उसको हम लिख सकते हैं कितना, बोलो शाबाश, 273.16 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन। ओके, 273.16 केल्विन। और अगर फारेनहाइट लिखना हो आपने, देन इट इज इक्वल टू 32.16 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने तीनों में से एक लिखना। ओके, बेटर आप 0.01 डिग्री सेल्सियस लिखिए। आप है सेम टेम्परेचर है केल्विन का भी, सॉरी सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ओके, वो आपको पता है डिफरेंट टेम्परेचर के वो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। है टेम्परेचर तीनों सेम ही, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस में, यहाँ पे किसमें है बोलो, केल्विन में, और यहाँ पे किसमें है, फ़ारेनहाइट में। ओके, Fahrenheit. एंड उस जगह का प्रेशर Yes. कितना होना चाहिए, उस जगह का प्रेशर होना चाहिए, राइट डाउन 4.58 mm of mercury, 4.58 mm of mercury, or 611.2 pascal, और 611.2 पास्कल। ओके, देखो बेटे, लिसन, अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में किसी पर्टिकुलर जगह में मैं अगर टेम्परेचर कितना कर दूं, 0.01 डिग्री सेल्सियस, और उसका प्रेशर कितना कर दूं, 4.58 mm of Hg, तो उस जगह जो पानी होगा वो सॉलिड भी होगा, आइस भी होगा,
लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा। ओके, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल मींस तीनों स्टेट्स। ओके, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर एट व्हिच द वाटर कोएग्जिस्ट इन ऑल द three states of matter, that is solid, liquid and gas. Right on button. Next topic, thermal expansion. Yes, thermal expansion. Thermal expansion. All the solids all thermal expansion all the solids, liquids and gases expand on heating. Expand on heating. This increase in the size of a body. This increase in the size of a body due to increase in the temperature is called thermal expansion. Due to increase in temperature is called thermal expansion. It is of three types. It is of three types. Number one, linear expansion. Number two, superficial or area expansion and number three, volumetric or cubical expansion. Okay, okay बेटा जी। Yes, sir. हाँ, Yes, लिसन sir. नाउ, बड़े डिटेल्स बेटा। अब देखना, मैं पहले लाइन करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाली लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। ये मेरे पास देखना एक रॉड है। ओके ओके, इस रॉड की जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। जब टेम्परेचर कितना है, टी, और अगर मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, टी प्लस डेल्टा टी कर देता हूँ, तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू एल डेल्टा एल। लेट दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल। ओके ओके बेटा। Yes, Yes, sir. sir. So therefore, increase in length, this delta L is directly proportional to number one, that is equal to delta T. Okay? Okay? Yes, sir. ये मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ है L1 है और बाद में इसकी लेंथ कितनी हो गई, L2. Then what is L2 minus L1, that is equal to delta L. Okay? Okay बेटा, this is equation number one. Yes, sir. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना क्या होगा, इसकी लेंथ में इंक्रीज होगा। ओके, नंबर 2 इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ L1। हम क्या सोचो भी, मेरे पास 1 इंच का लोहे का टुकड़ा है, उसको मैं अगर बहुत ज्यादा गर्म करूं तो यहां से लेके उसको लुधियाना तक कर दूंगा स्पेंड। नो, जितना ज्यादा लंबा होगा कोई भी मैटर या पीस ऑफ रॉड आयरन जो होगा, उसकी एक्सटेंशन उसी हिसाब से ज्यादा होगी। ओके, so Yes, therefore sir. this is equation number 2 combining equation number 1 and 2. So what is this, this is L2 minus L1 is directly proportional to L1 and delta T, or L2 minus L1 is equal to alpha
into L1 into delta T. Okay. Therefore, alpha is equal to what? It is equal to L2 minus L1 upon L1 into delta T. What is the unit of length? Meter. Meter. मीटर माइनस मीटर, मीटर में से मीटर जाएंगे तो मीटर रहेंगे ना, तो Yes, sir. ऊपर आ गया मीटर, नीचे भी लेंथ मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, रह गया क्या? केल्विन। तो इसका जो यूनिट है बेटे दैट इज इक्वल टू पर केल्विन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. इसका जो यूनिट है दैट इज पर केल्विन। ओके, अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट डाउन। अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इस बेटे इस इक्वेशन को जो है ऐसे और लिख सकता हूं, देखो L2 ऊपर वाली इक्वेशन L2 इस L1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो इट इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, यही आएगा ना? अल्फा डेल्टा टी सेकंड टर्म में Yes, sir. कांस्टेंट हो जाएगा, तो L प्लस अल्फा L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी, तो L1 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, Yes, Yes, sir. sir. यस। तो यहाँ से हमें पता चलता है, लेसन नंबर 1 क्या पता चलता है कि वो भी बॉडी है उसकी जो एक्सटेंशन होगी, लंबाई में एक्सपेंड होगा, वो नंबर 1 एक तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना आप टेम्परेचर एक्स्ट्रा देंगे उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, और नंबर 2 उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसके हिसाब से भी बढ़ेगी ना। मींस हमारे पास अगर 1 मीटर की एक रॉड है, एक 10 मीटर की रॉड है, और दोनों को सेम टेम्परेचर उनका इंक्रीज करें, तो 10 मीटर वाली जो रॉड है हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर क्या कर जाए, एक्सपैंड हो जाए, लेकिन 1 मीटर जो होगी वो कितनी करेगी, 1 मिलीमीटर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट Yes, बेटा नंबर 2 सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन, जल्दी कर लो। सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन। नाउ बेटे देखना, मेरे पास कोई एरिया है, कितना एरिया होता है, दिस इज एन सम एरिया, एरिया A1, और इसका टेंपरेचर कितना है T। इफ आई इंक्रीज द टेंपरेचर बाय डेल्टा T, तो एरिया बन जाता है कितना, A2। ओके, और कितना इंक्रीज होता है वो सारा एरिया, इसका जो एरिया है थोड़ा सा इंक्रीज होता है चार साइड से, दिस इंक्रीज इन डेल्टा A। तो व्हाट इज डेल्टा A? डेल्टा A is equal to A2 minus A2 minus A1. A1। तो यहाँ पे बेटे डालेंगे डेल्टा A is directly proportional to delta T, equation number 1। it is also directly proportional to original area A1। okay, Yes, sir. finding both equations, तो मेरे पास क्या है, उसका पास A2 minus A1 is directly proportional to A1 into delta T, और here again delta A2 minus A1 is equal to beta, where beta is coefficient of superficial what, expansion into A1 into delta T, or beta is equal to what, A2 minus A1 upon A1 into delta T। एरिया में से एरिया जाएगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा ना, Yes, sir. और नीचे भी एरिया है, तो एरिया से एरिया में कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा का यूनिट क्या है, पर केल्विन। Per Kelvin. ओके, और मैं लिख सकता हूं क्या, एरिया 2 इज इक्वल टू व्हाट, एरिया 1 into 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके, Yes, sir. ओके, मतलब एरिया। नाउ बेटा नंबर 3 क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या करेंगे बेटे, मेरे क्यूब बनाएंगे और इसका वॉल्यूम मास कितना V1, टेंपरेचर कितना T, टेंपरेचर इंक्रीज बाय डेल्टा T, then वॉल्यूम becomes what, V2। what is the increase, डेल्टा V is equal to V2 minus, बोलो V1. कर लेंगे इसको, Yes, sir.
डेल्टा V is directly equals to डेल्टा T. ओके, लेकिन यहाँ पे लिखना गामा, गामा, ओके, गामा का यूनिट सेम ही आएगा पर केल्विन, एंड गामा इज कॉल्ड एज, व्हाट इज गामा? गामा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. राइट डाउन बेटा रिलेशन बिटवीन, नहीं रिलेशन रहने दो, लिख लो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. तो रिलेशन क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3. इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है आपने, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है. ओके, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3. राइट डाउन नेक्स्ट, applications of thermal expansion, applications of thermal expansion. बेटा इसको ना बाद में करेंगे, अब टाइम हो गया मीटिंग का. ओके, रूपाली मैम, Yes, sir. Yes, sir. मैम प्लीज मीटिंग